السلام علیکم. کیسے ہیں ساتھیو؟ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ کا ایگزام جو 17 فروری 2026 کو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ایگزام بہت اچھا گیا ہوگا، کیونکہ جو سوالات کی تیاری میں نے کرائی تھی الحمدللہ وہ سارے سوالات ان میں سے اکثر و بیشتر آئے ہیں، کیونکہ میں جس ٹاپک کو پڑھایا تھا ان سے سمبندھت وہ سوال ضرور آیا ہے. چلتے ہیں آج کے اس کلاس میں ہم ان سارے سوالات کو آج حل کریں گے جو آج کے اس ایگزام میں پوچھا گیا ہے. 10ویں کے ایگزام میں 17 فروری 2026 کو اردو کا پیپر ہوا ہے. دیکھیے سب سے پہلا سوال کیا ہے. پہلے تو یہ جان لیں کہ اس 100 سوال میں سے صرف آپ کو 50 کا جواب دینا تھا، وہ آپ دیے ہوں گے. اگر اس سے کہیں زیادہ اگر آپ سوال کو حل کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ آپ کہ جانچ نہیں کیا جائے گا، وہ صرف 50 سوالات ہی جانچ ہوں گے. درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں. کیا ہے دوستو؟ 50 کا صحیح جواب منتخب کریں. 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے اور 50 باقی کو چھوڑ دیا جائے گا. تو چلیے ہم چلتے ہیں پہلے سوال نمبر 1 پہ. سوال نمبر 1 کیا ہے دوستو؟ جگن ناتھ آزاد کیا ہے؟ جگن ناتھ آزاد نے 1942 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی سے کس زبان و ادب میں آنرس کی ڈگری حاصل کی تھی؟ کس سے حاصل کی تھی دوستو؟ آپ اگر اس کو ڈیپلی پڑھے ہوں گے تو اس کا جواب آپ ضرور دیں گے. وہ ہے آپشن نمبر اے از کریکٹ، یعنی فارسی زبان میں انہوں نے آنرس کی ڈگری حاصل کی تھی. چلیے آگے اگلا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے چک بست. کیا ہے دوستو؟ چک بست کی غزلوں میں کس بڑے شاعر کا رنگ پایا جاتا ہے؟ کس بڑے چاہیے دوستو. دوسرا سوال ہے چک بست کی غزلوں میں کس بڑے شاعر کا رنگ پایا جاتا ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہے غالب، آپشن نمبر بی ہے میر، آپشن نمبر سی ہے آتش، آپشن نمبر ڈی ہے مومن. تو دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے کس بڑے شاعر کا رنگ پایا جاتا ہے غزلوں میں؟ تو غزلوں میں پایا جاتا ہے آتش کا. کیا ہے دوستو؟ آتش کا رنگ پایا جاتا ہے. لیکن دوستو مسدس میں انہوں نے مسدس میں جو 6 مصرے اس میں ہوتے ہیں اس میں میر انیس کا تقلید کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ میر انیس کا تقلید انہوں نے کیا ہے. کس نے؟ چک بست نے. پنجت برج نارائن چک بست اس کا اصل نام ہے، جو ہم نے بتایا تھا دوستو کلاس کے اندر. چلیے آگے چلتے ہیں. تیسرا سوال ہے، اگر زیادہ ٹائم لگائیں گے سوال پہ تو کلاس بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم مختصر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. تیسرا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو وہ لاہور میں پیدا ہوئے. کہاں ہوئے تھے؟ لاہور میں. 1915 عیسوی کو. کب ہوئے تھے؟ 1915 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا سوال ہے بیدی سے انٹرویو لینے والی کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا دوستو؟ وہ ہے بیدی سے انٹرویو لینے والے کا نام ہے عصمت چغتائی. کیا ہے دوستو؟ عصمت چغتائی. کیا ہے دوستو؟ عصمت چغتائی. آگے بڑھتے ہیں. مہدی افادی کے متعلق سوال آیا ہے اور اس کو ہم نے کلاس میں، اگر میرا آپ چینل پہ دیکھیں گے، مہدی افادی کے تعلق سے جو سوالات کو حل کرائے ہیں اس میں اس سوالات کو ضرور میں نے حل کرایا ہے. کئی سوالات اخذ ہو سکتے تھے، سارے سوالوں کو حل کرایا ہے. اس میں نے بتایا تھا کہ مہدی افادی کی 3 شادیاں ہوئی تھی. کتنی ہوئی تھی دوستو؟ 3 شادیاں ہوئی تھی، جس میں تیسری بیگم جو تھی وہ بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہوئی تھی. بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہوئی تھی. اور اس کا اصل نام مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا دوستو؟ مہدی افادی کا اصل نام تھا مہدی حسن. کیا تھا دوستو؟ مہدی حسن. یہ ساری باتوں کو ہم نے کلاس کے اندر پڑھا چکا ہوں. اگر آپ غور سے میرے ویڈیو کو دیکھے ہوں گے، میرے کلاس کو دیکھے ہوں گے تو آپ صحیح مار کر کے آئے ہوں گے. دیکھیے یہ میری بھانجی کا کاپی ہے، نزہت پروین کا کاپی ہے. اس نے اس کا صحیح نمبر ٹک لگائی ہے کیونکہ انہوں نے میرے کلاس کو دیکھی تھی، بغور سماعت کی تھی انہوں نے. چلیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اس ایگزام میں اچھے نمبر سے، اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ اچھے نمبر سے کامیاب ہو جائیں. اور چھٹا کوشچن ہے دوستو، مرزا غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو 15 جنوری 1869. یہ جو ہے
ऑप्शन नंबर बी में है 1870, ऑप्शन नंबर सी में है 1871 और ऑप्शन नंबर डी में है 1872। तो दोस्तों ये 15 फरवरी 1869 को इसका इंतकाल हुआ था। कब दोस्तों? 15 फरवरी को। ये 15 फरवरी को। ये क्वेश्चन गलत है, इसका जवाब सबको मिल सकता है क्योंकि 15 फरवरी यहाँ 15 जनवरी है, लेकिन मिस्टेक हुआ होगा तो फरवरी इसको मान करके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है लोहे का चना चबाना। लोहे का चना चबाना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है लोहे का चना चबाना का ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों कि लोहे का चना बनाना। ऑप्शन नंबर बी सख्त चना चबाना। ऑप्शन नंबर सी सख्त मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे भांजी ने इसको सही मार करके आया है। लोहे सख्त मुकाबला करना क्या है दोस्तों? सख्त मुकाबला करना। उम्मीद है कि आप लोग भी इसी में टिक लगाए होंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इस लफ्ज की निशानदेही की जिसमें नून गुन्ना है। नून गुन्ना हमने ग्रामर पढ़ाते हुए, उर्दू ग्रामर पढ़ाते हुए नून गुन्ना और नून लफ्जी सबको मैंने बतलाया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमने ग्रामर में पढ़ा चुका हूं, हमने ग्रामर में इसको बिल्कुल तफसील से पढ़ाया है। दर्जा झेल में क्या है दोस्तों? दर्जा झेल में लाहिका को तलाश कीजिए। बेवकूफ, बेशक, दौलतमंद और ला हासिल। तो इसका क्या होगा दोस्तों? देखिए मैंने इसके लिए ट्रिक भी बतलाया था आपको कि सीन के अल्फाबेट में सीन पहले है और लाम बाद में है, साबका लाहिका। तो दौलतमंद में क्या है दोस्तों? ये दौलतमंद जो है ये इसमें साबका इस्तेमाल हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रहण कहते हैं। देखिए मेरी भांजी ने इसको सही मार करके आया, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। आप लोग भी सही मारे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन 11 क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निगार आज़िम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? निगार आज़िम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? अक्स है, रश्क है, नक्श है, अश्क है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट हो जाएगा। जो निगार आज़िम का पहला अफसानी मजमुआ है जो कब शाया हुआ? 1990 ईस्वी में इसकी इशाअत हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1990 ईस्वी में इसकी इशाअत हुई थी। चलिए सवाल नंबर 12 पर हम पहुंचते हैं कि लफ्ज़ आब खरा के सही माना क्या है? लफ्ज़ आब खरा के सही माना क्या है दोस्तों? लफ्ज़ आब खरा के सही माना क्या है? तो सही माना है गर्म पानी का भाप। क्या है दोस्तों? गर्म पानी का भाप। ऑप्शन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर 13 में है कि दर्जा झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन सी है? आसारुस सनादीद, यादगार गालिब। यादगार गालिब किसने लिखी है? अल्ताफ हुसैन हाली ने। किसने? अल्ताफ हुसैन हाली ने। अल फारूक अल्लामा शिबली नुमानी ने। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन लिखा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किसने लिखा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। लेकिन असारुस सनादीद जो है ये कौन लिखे हैं? सर सैयद अहमद। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। सवाल 14 पे सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा 1898 ईस्वी में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? बेदी के अफसाने मजमुआ का नाम क्या है? तो वो दाना दवाम है। क्या है दोस्तों? दाना दवाम है, जो 1939 ईस्वी को ये इनकी इशाअत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 15 को मैंने हल कर लिया। ऑप्शन नंबर 16 पे पहुंचते हैं। मेहदी अफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातब किया गया है? मेहदी अफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातब किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। सैयद मकबूल अहमद हमदानी। मेहदी अफादी के ताल्लुक से मैंने जिस क्लास को पढ़ाया था उसमें बतलाया था कि मेहदी हसन का असल नाम क्या है। पूरे हालात व खिदमात पर मैंने तफसीली रोशनी डाली थी। जिसने उस क्लास को देखा होगा वो ज़रूर मार करके आया होगा। चलिए अच्छा करके आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था दोस्तों? वालिद पेशे के एतबार थे क्या थे? इरफान सिद्दीकी दोस्तों क्या है? इरफान सिद्दीकी के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे? तो वो क्या थे दोस्तों? वकील थे। क्या थे? वकील थे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये घर नया है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? ये नया है घर। कौन सा है? यह घर नया है। कौन सा है? तो आपको मालूम होगा नया क्या है? सिफत है। अच्छाई या बुराई बयान की जाए तो वो सिफत होगा, लेकिन घर क्या हो जाएगा? ये मौसूफ होगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। दर्जा झेल में मुहम्मल लफ्ज की निशानदेही कीजिए। रोटी ये मौजू है, किताब मौजू है, आदमी मौजू है, ये सब गलत होगा। आदमी वादमी क्या है, ये मुहम्मल, ये क्या है दोस्तों, ये मुहम्मल होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वो नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। वो नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए मैंने जो इसमें मारफा का बयान जो पढ़ाया था क्लास में, उसमें मैंने बिल्कुल वजाहत से बताया था कि वो क्या होगा दोस्तों, लक़ब होगा। क्या होगा, लक़ब होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, क्योंकि अगर डिटेल से हम चाहें इसको बताना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सरसरी तौर पे क्वेश्चन का आंसर दे करके आगे बढ़ते हैं। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था दोस्तों, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, सैयद साकिब हुसैन। क्या था दोस्तों, सैयद साकिब हुसैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हसन नाइम की पैदाइश कब हुई। हसन नाइम के ताल्लुक से 2-3 सवालात इसमें किए गए हैं आज के इस एग्जाम में। कब हुई थी पैदाइश हसन नाइम की दोस्तों, कब हुई थी, 1924 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों, 1924 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस गजल में रदीफ न हो, क्या हो दोस्तों, रदीफ न हो उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल आसान है, देखिए सही जवाब मार करके मेरी भांजी आई है, वो है गैर मुरद्दिफ। क्या कैसे कहते हैं उसे, गैर मुरद्दिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बस्तियां। 24 क्या है, बस्तियां चांद, इसमें खाली जगह को पुर करना था। क्या था दोस्तों, खाली जगह को पुर करना था। ये क्या है, ये अहमद फराज का शेर है। अगर आप उसे गौर से पढ़े होंगे तो सही जवाब लगा के आए होंगे। बस्तियां चांद सितारों की बसाने वालों, बस्तियां चांद सितारों की बसाने वालों, कुर्रे अर्ज पे बुझने चले जाते हैं चिराग, कुर्रे अर्ज पे बुझने चले जाते हैं चिराग। ये किसका है दोस्तों, ये है अहमद फराज का। मैंने क्लास के अंदर, अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे, अहमद फराज के हवाले से मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू इस पे हुई है, अहमद फराज पे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, बाब फैज से दोनों जहां का क्या मिलता है, तो ये रिस्क मिलता है। क्या है दोस्तों, रिस्क मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे, अजनबी चेहरे। क्या है दोस्तों, अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है, किसकी तसनीफ है दोस्तों, अजनबी चेहरे कमर जहां अनीस की। इसी में अजनबी की जगह अगर 4 चेहरे होता, 4 चेहरे, तो क्या होता, ये सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ होता। कौन, सुहेल अजीमाबादी का 4 चेहरे। क्या है दोस्तों, 4 चेहरे। लेकिन क्या पूछा, अजनबी चेहरे, ये कमर जहां अनीस की तसनीफ है। किसकी दोस्तों, कमर जहां अनीस की तसनीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना होगा, तो कम करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, कम करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, तो ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। अदब की पहचान किनकी है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है दोस्तों, अब्दुल रऊफ। क्या था दोस्तों, अब्दुल रऊफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचते हैं, क्योंकि हमको क्लास लंबा चला जाएगा और आप देखकर उकता जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके इस क्वेश्चन को हल करा दें। देखिए भीमराव अंबेडकर के हवाले से मैंने पूरा क्लास में बताया था कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी, 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों, 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंचते हैं। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था। क्या था दोस्तों, भीमराव के वालिद का नाम क्या था, रामजी मालोजी सकपाल। क्या है दोस्तों, रामजी मालोजी सकपाल उनके वालिद का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झेल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है दोस्तों, 32 में ताबीरो तनकीद। क्या होगा दोस्तों, ताबीरो तनकीद। क्या है, लुत्फुर रहमान के मैंने पढ़ाया था। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद की, मुकद्दमत शेर व शायरी अल्ताफ सिन्हाली की, असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद की। तो बच जाएगा आपके पास ताबीरो तनकीद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है, वो है
औलाद, क्या है दोस्तों, औलाद है, क्या है दोस्तों, औलाद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंच जाते हैं। वहां मत जाओ, क्या लिखा हुआ है, वहां मत जाओ, कौन सा फेल है, वहां मत जाओ। अगर आप ग्रामर की क्लास को देखेंगे वहां लिखा हुआ फेले नहीं होगा, वहां जाने से मना किया जा रहा है, फेले नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे पहुंचते हैं। दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। दिल्ली इसमें मारफा है, ताजमहल इसमें मारफा है, गांधी मैदान इसमें मारफा है। रह गई बात कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है पहाड़ी, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी, ये है नकरा। चलिए आगे चलते हैं। 36, क्वेश्चन नंबर 36, वह इसम जिससे आदमियों या चीजों के गिरोह या झुंड का पता चले क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वह इसम जिससे आदमियों या चीजों के गिरोह या झुंड का पता चले क्या कहलाता है, वो कहलाता है इसमें जमा। क्या कहलाता है दोस्तों, वो है इसमें जमा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, जुल्म की जिद क्या होगी, तो अदल होगी। क्या है दोस्तों, अदल माने इंसाफ, क्या है, अदल के माने इंसाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, क्वेश्चन नंबर 38, दर्ज झेल में साबका की निशानदेही कीजिए। क्या है, नजरअंदाज, इसमें नजरअंदाज में क्या है दोस्तों, यह है लाहिका। मार्का आरा, मार्का आरा, नजरअंदाज, दगाबाज, अनपढ़, अनपढ़ में क्या है दोस्तों, अनपढ़ में है साबका इस्तेमाल हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन, तुम आते हो, क्या है दोस्तों, तुम आते हो, इस जुमला में तुम कौन सा सेगा है, तो कौन सा सेगा है, सेगा वाहिद हाजिर है, सेगा वाहिद हाजिर, सेगा वाहिद हाजिर है। तुम सब आते हो, सेगा जमा हाजिर हो जाएगा। मैं आता हूँ, सेगा वाहिद मुतकल्लिम, हम सब आते हैं, सेगा जमा मुतकल्लिम, वो आता है। सेगा वाहिद गायब, वो सब आते हैं, सेगा जमा गायब, इसको याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, दर्ज झेल में लफ्ज मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। क्या है, वो दुआ है, क्या है दोस्तों, दुआ है, दुआ। चलिए 41 क्वेश्चन है, इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। क्या है दोस्तों, फल, फल है नकरा, लड़का है नकरा, नदी है नकरा, कोई भी नदी हो सकता है, लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, फल कोई भी लड़का हो सकता है, मखसूस नहीं है, मुतअय्यन नहीं है, गैर मुतअय्यन माना को बतला रहा है। लेकिन गंगा जब बोलेंगे तो ये मुतअय्यन माना को बतला रहा है, और मुतअय्यन माना को जो बतला है वो इसमें मारफा होगा। क्या होगा दोस्तों, इसमें मारफा कहलाएगा, तो इसमें मारफा क्या हो गया, इसमें गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दर्ज झेल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। बुलबुले हिंद, क्या है दोस्तों, ये नहीं है। भारत रत्न, ये भी नहीं है। गुड़िया, ये भी नहीं है, बल्कि मीर, मीर तकी मीर, ये तखल्लुस रखे थे। मीर तकी मीर का तखल्लुस क्या था, मीर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, आलम की कितनी किस्में हैं। देखिए मेरे चैनल को स्क्रॉल थोड़ा कीजिए और देखिए आलम का बयान, आलम के 7 किस्मों का बयान। क्या है दोस्तों, बिल्कुल हेडिंग में टाइटल मैंने रखा था, आलम की 7 किस्मों का बयान। अगर आप देखे होंगे तो सही मारेंगे, 7। कितना है आलम की किस्में, 7 किस्में हैं। चलिए देखिए, जैसे तैयारी मैंने कराया था आपको चैनल पे, बिल्कुल वही क्वेश्चन सब पूछा गया है। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कैंची, कैंची क्या है दोस्तों, कैंची क्या है, तो इसमें आला है। क्या है दोस्तों, इसमें आला है। आगे चलते हैं। 45, वो क्यों खामोश है, वो क्यों खामोश है, ये जुमला में ये कैसा जुमला है, तो ये क्या है, सवालिया जुमला है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सवालिया जुमला है, वो क्यों खामोश है। चलिए 46, पानी फेरना, पानी फिरना, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है उम्मीद खत्म होना। क्या है दोस्तों, उम्मीद खत्म हो जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, दर्ज झेल में माजी ना तमाम की मिसाल कौन है, माजी ना तमाम की मिसाल कौन है, वो आता था। क्या है दोस्तों, वो आता था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और 48 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 48 क्वेश्चन क्या है, मुतजाद की मिसाल, मुतजाद की मिसाल है। क्या है दोस्तों, मुतजाद की मिसाल क्या है, खतो किताबत मुतरादिफ है, हुस्नो जमाल मुतरादिफ है, रंजो गम मुतरादिफ है, नशेब फराज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का अहमद पढ़ रहा है, इसमें अहमद क्या है, अहमद फाइल है दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे और पढ़ेंगे कवायद, इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको समझ में आती चली जाएंगी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 50, 15 अफराद में 15 क्या है? इसमें तादाद है। क्या है दोस्तों? इसमें तादाद है। चलिए 51 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किन कामों में गुजारा? शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किन कामों में गुजारा? तो वाजो तबलीग में। क्या दोस्तों? वाजो तबलीग में। क्वेश्चन नंबर 52 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सुहेल अजीम आबादी का नाम असल क्या था? मैंने आपको बताया था, सैयद मुजीबुर रहमान। क्या था दोस्तों? सैयद मुजीबुर रहमान। ये सारे सवालात जिसको मैंने पढ़ा चुका हूँ आ चुका है आज के क्वेश्चन में। अगर आप सही से मेरे चैनल पे पढ़े होंगे तो इसका जवाब मिल गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, सलाम मछली शहरी की वफात कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? 1973 ईस्वी लाहौर में। कहाँ हुई थी? 1973 ईस्वी लाहौर में इसकी पैदाइश यूपी के अंदर हुई थी। सलाम मछली शहरी की वफात कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में कौन सा अफसाना सुहेल अजीम आबादी की तख्लीक है? आशियाना। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आशियाना, ऑप्शन नंबर बी फरार, और ऑप्शन नंबर बी भाभी जान। ये करेक्ट होगा। कटी हुई शाख कमर जहां की है, सैयद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की फरार है, आशियाना निगार अजीम की है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए शौक लखनवी के नाम से मैंने एक क्लास लिया था, उसमें आपको बताया था कि मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ कौन है। मैंने उसकी तसनीफ पे बिल्कुल तफसील से गुफ्तगू की थी कि और शौक लखनवी बहार इश्क किसकी है? शौक लखनवी की है। ऑप्शन नंबर 55, ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? 55 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 56 क्या था दोस्तों? ये है वही बहार इश्क में से, शौक लखनवी की बहार इश्क में से एक मसनवी है, वहीं से ये लिया गया था। देखता उसको बार बार, देखता उसको बार बार, देखता उसको बार बार था मैं, देखता उसको बार बार था मैं, महवे हुस्ने जमाल यार था मैं, महवे हुस्ने जमाल यार था मैं। ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका मुकम्मल शेर है, देखता उसको बार बार था मैं, महवे हुस्ने जमाल यार था मैं, महवे हुस्ने जमाल यार था मैं। चलिए ऑप्शन नंबर 57 पे पहुंचते हैं। सरापा किस सिनफ शायरी का हिस्सा है? सरापा है मरसिया का। क्या है दोस्तों? सरापा है मरसिया का। गालिब की बेगम का क्या नाम था? पढ़ा चुका हूं मैं, उमराव बेगम। क्या था दोस्तों? उमराव बेगम। क्या था दोस्तों? उमराव बेगम। ऑप्शन नंबर 59, ऑप्शन नंबर 59 पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 59 और क्या है? अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ क्या है? तो वह है राशिदुल खैरी। क्या है दोस्तों? वह है राशिदुल खैरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 60 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूआ का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूआ का नाम क्या है दोस्तों? अनोखी मुस्कुराहट। क्या है दोस्तों? अनोखी मुस्कुराहट। और ये अजनबी चेहरे किनकी है? ये अजनबी चेहरे कमर जहां की है, चारागर कमर जहां की है, लेकिन चार चेहरे सुहेल अजीम आबादी की। किसके दोस्तों? सुहेल अजीम आबादी की। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल क्या है? 61, सवाल नंबर 61, फेल की जमा क्या है? अफआल। क्या है दोस्तों? अफआल। चलिए आगे चलते हैं। लफ्ज हिंदी किस जबान का लफ्ज है? तो वो है फारसी का। यह असल में सिंधी था, फिर सीन को वहाँ थोड़ा सा दुश्वार हुआ निकालने में उसकी तलफ़ुज़, तो हा तखफीफ के लिए लाया गया और वो हिंदी हो गया। इसी तरीके से हिंदुस्तान बना वहाँ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, उर्दू की पहली बाज़ाब्ता अदबी नसरी किताब कौन है? अदबी नसरी किताब मेराजुल आशिकीन, ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज। क्या है दोस्तों? ख्वाजा बंदा नवाज, ख्वाजा बंदा नवाज, ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज। क्या है दोस्तों? गैसु दराज की लिखी हुई किताब मेराजुल आशिकीन दोस्तों। क्या है दोस्तों? मेराजुल आशिकीन। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 है कि सच्चिदानंद की कौन सी नज्म, सच्चिदानंद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो दोस्तों ये क्या है? वारिस अली शाह से, वारिस शाह से। किसकी लिखी हुई है? अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम जो है। क्या है दोस्तों? ये साहिर लुधियानवी की महबूबा का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। 65, क्वेश्चन नंबर 65, अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसाना निगार कौन है? अनंत मूर्ति। कौन है दोस्तों? अनंत मूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुकांत बाबू के पास खत कहाँ से आते थे? वो ससुराल से आते थे। कहाँ से आते थे दोस्तों? ससुराल से आते थे। चलिए आगे चलते हैं। कहानी
67 सवाल नंबर कौन है 67 कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है वो दरख्त का नाम है किसका नाम है दोस्तों दरख्त का नाम है चलिए क्वेश्चन नंबर 68 68 शामिल नसाब अफसाना कटी हुई शाख शामिल नसाब अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है तो वो कमर जहां अनीस है क्या कमर जहां है कौन है दोस्तों कमर जहां चलिए आगे चलते हैं कमर जहां की तसनीफ हरफ आगही किस नौइयत की है तो ये तनकीदी है हरफ आगे किसकी है तनकीदी है इसको मेरी भांजी ने सही करके आया है चलिए आगे बढ़ते हैं गए क्वेश्चन नंबर 70 कौन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 में गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह गए मौसम में खिलते थे जो खिलते थे गुलाबों की तरह गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है उसका नाम क्या था दोस्तों अफसाना फरार में क्या है दोस्तों अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है उसका नाम क्या था अजीम नाम था क्या था दोस्तों अजीम नाम था चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 72 दर्जा झेल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है दर्जा झेल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है देखिए दोस्तों मिरातुल उरूस क्या है डिप्टी नज़ीर अहमद का है तौबतुन नसीह डिप्टी नज़ीर अहमद का है इब्नुल वक्त क्या है दोस्तों डिप्टी नज़ीर अहमद का है फिरदौस बरी ये अब्दुल हलीम शरर का है किसका है दोस्तों अब्दुल हलीम शरर का है किसका दोस्तों अब्दुल हलीम शरर का है चलिए आगे चलते हैं और तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आई दोस्तों कब मंजर आम पर आई तौबतुन नसूह क्या है दोस्तों तौबतुन नसूह तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 1877 ईस्वी कब आई थी दोस्तों 1877 ईस्वी को चलिए चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ तो राय बरेली में हुआ कब हुआ तो 1926 ईस्वी को एक दौरा पड़ा था दिल का वहीं इंतकाल हो गए थे चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 किसी की तारीफ में जो नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं कसीदा कहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों कसीदा कहते हैं चलिए जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए तो 1947 ईस्वी में वो दिल्ली आ गए थे चलिए 77 क्वेश्चन नंबर 77 परवेज शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए थे परवेज शाहिदी तो इस्लामिया स्कूल में किसमें दोस्तों इस्लामिया स्कूल में चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 पे पहुंचते हैं शामिल निसाब खत में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है शामिल निसाब खत में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है तो वो मुहर्रम की तातील में घर आने का जिक्र किया है कब किया है दोस्तों मुहर्रम अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का ज़रूर सही आंसर लगाया होगा कुछ क्वेश्चन है जो वाकई गौर खोज करने का है क्या है कि बैदी को उर्दू का ना खुदा किसने कहा है दोस्तों इस क्वेश्चन का इसको स्किप करते हैं और अगले वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे कि किसने कहा था थोड़ा ये क्वेश्चन निसाब से हटा हुआ है और कुछ ये लगता है कि क्वेश्चन कुछ है ये चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 सिराज को मुलाजिमत किस शहर में मिली थी वो बेंगलौर में मिली थी कहाँ मिली थी दोस्तों बेंगलौर में मिली थी क्वेश्चन नंबर 81 सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था सैयद मोहम्मद अली जाफरी क्या था दोस्तों सैयद मोहम्मद अली जाफरी सिर्फ इनके नाम में अली बढ़ जाने से इनके वालिद का नाम हो जाता है सैयद मोहम्मद अली जाफरी क्या है सैयद मोहम्मद अली जाफरी इनके वालिद का नाम है चलिए दर्जा झेल में मुज़क्कर की पहचान कीजिए क्या है दोस्तों आराम क्या होगा दोस्तों आराम होगा चलिए आराम क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 दर्ज झेल में काम का मुतरादिफ क्या है वो दोस्तों काज है क्या है दोस्तों वो काज है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 लफ्ज़ जिंदा क्या है दोस्तों लफ्ज़ जिंदा के क्या माना है बिल्कुल आपको याद रखने की चीज़ है कैद खाना क्या है दोस्तों कैद खाना देखिए सब में खाना लगा दिया है कैद खाना गुस्ल खाना कुतुब खाना नेमत खाना ताकि
कैंडिडेट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो करके वो गलत कर जाए, लेकिन आपको याद रखना है वो क्या है दोस्तों, कैद खाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान में आए थे? कहाँ से हिंदुस्तान में आए थे? मैंने आपको वीडियो के अंदर क्लास में बतलाया हुआ है कि ईरान से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? ईरान से आया था। क्वेश्चन नंबर 86, निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस नौइयत की किताब है? क्या है दोस्तों? किस नौइयत की किताब है दुनिया मेरे आगे? तो मैंने निदा फाजली पे जो क्लास लिया था उसमें बताया था कि दुनिया मेरे आगे खाका है। क्या है दोस्तों? किस नौइयत की किताब है? वो है खाका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सिनफे नज्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? क्या होती जा रही है दोस्तों? ये मुस्तहकम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? मुस्तहकम होती जा रही है या धुंधली होती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 88, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? देखिए मैंने क्लास लिया हुआ है, वो देखिएगा चैनल के नीचे मेरा लिखा होगा इल्मे हिजा का बयान, उसमें बिल्कुल शुरू से उसमें दिया हूँ, उसमें बतला चुका हूँ मैं कि 5 किस्मों का बयान हुआ है। क्या है दोस्तों? 5 किस्मों में इसको बयान किया गया है। इल्मे हिजा क्या है दोस्तों? इल्मे हिजा, इल्मे हिजा और इल्मे सर्फ, इल्मे सर्फ, इल्मे नाहु, इल्मे नाहु, इसमें इल्मे बलागत। क्या है दोस्तों? इल्मे बलागत। क्या है दोस्तों? इल्मे बलागत, इल्मे उरूज। ये 5 किस्म हैं। 5 किस्मों में उर्दू कवायद को तकसीम किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहावरा आंखों का तारा होना। क्या होना दोस्तों? आंखों का तारा होना। मुहावरा आंखों का तारा होना, तो क्या होगा इसका सही? आंख का डॉक्टर होना, बहुत प्यारा होना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आंखों का तारा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल हुआ था 1958 ईस्वी को। इनका इंतकाल कब हुआ था? 1958 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्या है दोस्तों? 91, इसमें चलते हैं। दर्ज झेल में कौन सी नज्म अमृता प्रीतम की है? एक क्वेश्चन और आ चुका है, वारिश शाह से। क्या है दोस्तों? वारिश शाह से। यह अमृता प्रीतम की नज्म है, बहुत मशहूर नज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 यानी 92, नज्म बारिश की एक सुबह। क्या है दोस्तों? बारिश की एक सुबह, इसका उर्दू तर्जमा किसने किया है? शाफे कुदवाई ने। क्या किसने किया है दोस्तों? शाफे कुदवाई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 93, मैथिली जबान किस सूबे में बोली जाती है? तो सभी जानते हैं कि ये मैथिली हमारे बिहार में बोली जाती है और बिहार के मिथिलांचल में, जहां हम लोग बिलोंग करते हैं, वो बिहार में मिथिलांचल है, बिहार में बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, तरादुई ने खाली संदूक के साथ आखिरी मुआमला क्या किया? खाली संदूक के साथ आखिरी मुआमला तरादुई ने क्या किया था? जला दिया था। क्या किया था दोस्तों? जला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? 2 मिसरे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हसन नाइम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुंचता है? हसन नाइम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुंचता है? तो वो हज़रत अली तक पहुंचता है। हज़रत मखदूम के वास्ते हज़रत अली तक इनका सिलसिला पहुंचता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, दर्ज झेल में कौन सी मसनवी मुसहफी की है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। देखिए खटमल नामा। क्या है दोस्तों? खटमल नामा इसकी मसनवी है। यह आज पूछा गया है कि मुसहफी की कौन सी मसनवी है? तो ये खटमल नामा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, नसीम का इंतकाल कब हुआ? कब हुआ है दोस्तों नसीम का इंतकाल? 1845 ईस्वी को। कब हुआ था? 1845 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, सैयद मोहम्मद जाफरी की तख्लीक करदा शौक़िए तहरीर क्या है दोस्तों? शौक़िए तहरीर क्या है? ये शेरी मजमुआ है। क्या है दोस्तों? शेरी मजमुआ में मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। क्या है दोस्तों? शौक़िए तहरीर क्या है? किनकी है? सैयद मोहम्मद जाफरी। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी। और शौक़िए तहरीर इनकी शेरी मजमुआ है जो मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। क्या है दोस्तों? शौक़िए तहरीर। क्या है दोस्तों? शौक़िए तहरीर ये मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? है क्वेश्चन है परवेज शाहिदी। क्या है दोस्तों? परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई? क्या कब हुई थी दोस्तों? परवेज शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1910 ईस्वी को परवेज शाहिदी की पैदाइश हुई। चलिए दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन को मैंने आपके सामने हल कराया। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से इम्तिहान दे करके आए होंगे। मेरे चैनल से बने रहें और क्लास करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अक्सर व बेशतर मेरा पढ़ाया हुआ ये सवाल आया है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट की बात कही है। मैंने जिस टॉपिक को पढ़ाया है बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू उस पर हुई है। हर एक पहलू पे मैंने आपकी नज़र को वहाँ तक पहुँचाया है। उस जो सवालात उस चैप्टर से अखज़ हो सकते थे, उन सारे सवालात को मैंने आपके सामने रखा था, वो आज आया है। उम्मीद कि आप लोग समझ गए होंगे और ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बने हुए हैं वो बने रहें, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और उर्दू ग्रामर, उर्दू अदब सब पढ़ाई होगी, पढ़ते रहें। चलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।